اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار۔ فش سائن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ہتھیلی کی لائنز کے ساتھ فش کا سائن ہو تو اس کے کیا میننگز ہوتے ہیں، اور مختلف ہتھیلی کے جو ابار ہوتے ہیں ان پہ فش سائن کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں ہاتھ کی لائنز کا بتا دیتا ہوں کہ ہتھیلی میں زندگی کی لکیر کہاں پہ ہوتی ہے۔ یہ آپ کی زندگی کی لکیر ہے جناب، یہ انگوٹھے کے اوپر سے شروع ہوتی ہے اور یہ نیچے کی طرف آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے تو آپ لائنوں کو ذہن نشین کر لیں۔ یہ ہے آپ کی مائنڈ لائن، یہ آپ کی دماغ کی لکیر ہے۔ یہ جتنی لمبی ہوگی اتنے آپ ذہین ہوں گے، انٹیلیجنٹ ہوں گے، اور زندگی کی لائن جتنی بے داغ ہوگی، خوبصورت ہوگی، چمکدار ہوگی، اتنی آپ کی زندگی لمبی ہوگی۔ اس کے بعد آ جاتی ہے، یہ آپ کی آتی ہے دل کی لکیر، ٹھیک ہے جی۔ یہ جتنی خوبصورت ہوگی ان دو انگلیوں کے بیچ تک پہنچے گی یا جوپیٹر ماؤنٹ تک پہنچے گی، اس کو اتنا زیادہ اچھا مانا جاتا ہے۔ اور یہ ہوتی ہے آپ کی قسمت کی لکیر۔ قسمت کی لکیر آپ کی جتنی خوبصورت ہوگی، لمبی ہوگی، اتنی آپ کی اچھی جاب ہوگی، بچپن آپ کا بڑا اچھا ہوگا، اور آپ زبردست ایجوکیشن بھی حاصل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی آسانیاں دیتا ہے جب آپ کی قسمت کی لائن بڑی بہترین ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے۔ اور یہ ہوتی ہے آپ کی شہرت کی لائن۔ دیکھیں، جب تک آپ کے پاس یہ سن لائن نہ ہو تب تک اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم نہیں دیتا۔ نیم فیم تب ہی آپ کو ملے گا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سن لائن دی ہوگی۔ جو لوگ زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام حاصل کرتے ہیں، منسٹر بنتے ہیں، فیکٹریوں کے مالک ہوتے ہیں، سپر سٹار بنتے ہیں شوبز میں، تو ان کے ہاتھ میں آپ کو یہ جو سن لائن ہے، شہرت کی لائن ہے، یہ آپ کو بڑی پاورفل نظر آئے گی۔ اس کے بعد بات کریں گے ہم، یہ ہے آپ کی بزنس کی لکیر۔ دیکھیں، یہ بزنس کی لکیر آپ کی یہاں سے نکلتی ہے اور یہ مرکری ماؤنٹ پہ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب میں آپ کے اور یہ ہتھیلی کے بریسلٹ ہوتے ہیں، یہاں پہ 3 رنگ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بھی الگ میننگ ہے، ان پہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا۔ اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو فش کا سائن ہے، یہ ہوتا ہے آپ کا وینس کا ایریا۔ یہ آپ کا وینس ماؤنٹ ہے اور یہ سارا ایریا وینس کا کہلاتا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ وینس کا ایریا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو فش سائن، بڑا ہی خوبصورت سائن، آپ کو فش سائن یہاں پہ آپ کو ایسے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ وینس ماؤنٹ پہ ویسے فش سائن بڑا کم ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو اتنا خوبصورت فش سائن مل جائے وینس ماؤنٹ پہ، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ بڑے زندہ دل بھی ہوں گے، بڑے رومانٹک بھی ہوں گے، اور یہ بڑی فلرٹی نیچر کے ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ حسن پرست ہوتے ہیں، اور اس حسن پرستی کی وجہ سے ہی یہ زندگی میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ روپیہ پیسہ بھی کماتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ یہاں پہ فش سائن میں بات کر رہا ہوں، یہ آپ کا وینس کا ایریا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہاں پہ فش کا سائن ہوگا تو ایسے لوگوں کو شادی کے بعد زیادہ دولت ملتی ہے، زیادہ روپیہ پیسہ ملتا ہے۔ شادی کے بعد ان کو روپیہ پیسہ کیوں زیادہ ملتے ہیں، اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، لڑکی ہوگی تو وہ شادی ہی کسی امیر لڑکے کے ساتھ کرے گی، لڑکا ہوگا تو وہ امیر لڑکی کے ساتھ شادی کرے گا، لڑکی ہوگی تو امیر لڑکی کے ساتھ شادی کرے گی، اور شادی کے بعد ان کو بے تحاشا دولت بھی ملتی ہے۔ لڑکا ہوگا تو اس کو جہیز مل جائے گا، اس کے امیر سسرال والے ہوں گے تو ہو سکتا ہے اس کی فوراً سیٹلمنٹ کروا دیں یا اس کو بہت اچھا بزنس بنا دیں۔ تو شادی کے بعد ایسے لوگوں کو بہت زیادہ دولت ملتی ہے، روپیہ پیسہ ملتا ہے۔ اور وینس ماؤنٹ پہ یہ ہوتا ہے آپ کا وینس آپ کو زندگی کی تمام آسائشیں بھی دیتا ہے۔ تو اگر وینس ماؤنٹ پہ یہ فش کا سائن ہوگا تو آپ کے پاس بڑا گھر ہو سکتا ہے، آپ کے پاس
ज़बरदस्त बैंक बैलेंस हो सकता है, ज़बरदस्त आपका बिजनेस हो सकता है, जॉब आपकी अच्छी हो सकती है और आपको ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मिलेंगी। बड़ी गाड़ी आपके पास होगी, बड़ा घर होगा और अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, भरपूर ज़िंदगी गुजारेंगे। और ऐसे लोग फ्लर्टी नेचर के भी होते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांस करने वाले, और इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है ना ये अपने पार्टनर भी चेंज करते हैं जब आपके हाथ में, क्योंकि फिश जो होता है ना वो वीनस की जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको बढ़ा देता है। तो ज़ाहिर है जब ये वीनस की क्वालिटीज़ बढ़ाएगा तो वीनस से हम प्यार को भी देखते हैं, लव को भी देखते हैं। तो ज़ाहिर है बंदा जब ज़रूरत से ज़्यादा रोमांटिक होगा तो फिर उसकी ज़िंदगी में जो अफेयर हैं उनके चांसेस बढ़ जाएंगे। लड़की होगी तो वो भी अफेयर की तरफ जा सकती है, लड़का होगा तो वो भी अफेयर की तरफ जा सकता है, अगर वीनस माउंट पे आपको फिश का साइन नजर आएगा। रुपया, पैसा, दौलत, अफेयर, ये लाजमी इस बंदे को ये चीजें मिलेंगी। दौलत भी मिलेगी, रुपया पैसा भी मिलेगा। इसके अलावा ऐसे लोगों के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, यानी कि इनके अंदर कोई ना कोई कला, कोई ना कोई आर्ट, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, इन शोबों में भी ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े कामयाब होते हैं। ऐसे लोग बड़े अच्छे सिंगर हो सकते हैं, बड़े अच्छे एक्टर हो सकते हैं, और ऐसे लोगों को नेम फेम भी मिलता है और ज़िंदगी में अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बड़ा अरूज देता है। ये तो हो गया जनाब वीनस माउंट पे अगर आपका फिश साइन हो तो। अब बाकी साइंस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं जल्दी जल्दी से लाइनें ड्रा कर देता हूं, फिर एक दफ़ा सुन लें आप। जिंदगी की लकीर, ये आपकी ब्रेन लाइन, ये आपकी हार्ट लाइन, ये आपकी किस्मत की लकीर, ये आपकी शोहरत की लकीर, ये आपकी बिजनेस की लकीर। ठीक है जी। और जो माउंट आपके बनेंगे वो होगा जनाब, ये होगा वीनस। ये वीनस माउंट है, ये आपने याद रखना है। ये हो गया वीनस का एरिया। ये है आपका अंदरूनी मंगल। जो अंदरूनी मंगल का एरिया ये है, ठीक इसके सामने ये अंदरूनी मंगल होता है और ये बैरूनी मंगल होता है। ठीक है जी। अब अगर यहां पे आपको फिश का साइन मिलता है, बड़ी खूबसूरत फिश आपको मिल जाती है ऐसे या ऐसे करके, तो ये ऐसे लोग बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं। आर्मी में, फोर्सेस में आपको नज़र आएंगे। सिक्योरिटी गार्ड, बहुत अच्छे, जिन लोगों के मसल्स बड़े मजबूत होते हैं, बॉडी बिल्डर्स, स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर, तो उनके हाथ में आपको ये फिश का साइन नज़र आएगा। तो ये लोग गोल्ड मेडल भी हासिल करेंगे और कोई अल्लाह ताला इनको बड़ा मर्तबा मुकाम भी देगा। और ये जो ये होता है मरीख का उबार, मरीख जो होता है ये ज़मीन का भी बेटा है। तो जब यहाँ पे फिश साइन होगा तो ऐसे लोगों के पास बहुत बड़ी अराजी हो सकती है, ज़मीन जायदाद के मालिक होंगे, मरब्बों के मालिक होंगे, और ये प्रॉपर्टी का काम, रियल एस्टेट के काम में, ज़मीन के प्रॉपर्टी के लेन देन के काम में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कामयाब रहते हैं। ठीक है जी। बहादुर भी होते हैं, जुर्रतमंद भी होते हैं, दलेर भी होते हैं, इनके अंदर एनर्जी भी बड़ी होती है, इनके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा बड़ा होता है और इनके अंदर गुस्सा, ईगो भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद बारी आती है जनाब, ये है आपका मुश्तरी का उबार। ये मैं कल आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे अगर फिश होगी तो ये आपको कोई बड़ा मर्तबा मुकाम, आपकी जॉब अच्छी हो सकती है, आपका बिजनेस अच्छा हो सकता है, आपका बड़ा घर हो सकता है, अल्लाह ताला को औलाद देगा। इसके अलावा रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें भी आपके पास आएंगी। और अगर किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ, यहाँ पे आपको सैटर्न पे फिश का साइन नज़र आता है, तो आपको गवर्नमेंट से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा ज्ञान आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगा, कोई बड़ी हायर आपकी जॉब हो सकती है। बुढ़ापा आपका ऐसे लोगों का बड़ा बेहतरीन होता है, इनके पास प्रॉपर्टी आती है, सडन वेल्थ इनको मिलती है, हुकूमत से इनको फ़ायदा होता है। और ये होता है आपका, ये सैटर्न का माउंट है, ये है आपका जोहल का उबार। ठीक है जी। ये जोहल का उबार है। अगर यहाँ पे फिश साइन होगी तो ये आपको दौलत भी देती है, ये आपको नॉलेज भी देती है, स्पिरिचुअलिटी, इल्म पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन अलूम को भी आप आसानी सीख लेते हैं। अब जनाब यहाँ पे सन माउंट पे अगर यहाँ पे फिश का साइन हो शोहरत की लाइन के साथ टच, तो ये आपको इंटरनेशनल फेम देगा, रुपया पैसा देगा, बिजनेस में कामयाबियां मिलेंगी, एक्टिंग में रातों रात आप वायरल हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं,
वर्ल्ड में आपको वालिद साहब से, फादर से फ़ायदा होगा और ज़िंदगी में हायर कोई मर्तबा मुकाम आपको ज़रूर मिलेगा। ये मरकरी माउंट होता है, अगर यहाँ पे आपको फिश का साइन नज़र आता है तो ये बिज़नेस में ऐसे लोग बड़े कामयाब रहते हैं और ऐसे लोगों को बिज़नेस में बड़ी ज़्यादा कामयाबियाँ मिलती हैं। ये होता है आपका मून का एरिया, ये आपका सारा मून का एरिया है। अब अगर यहाँ पे आपको ये इस तरीके से फिश का साइन नज़र आता है तो ये फिश का रुख अगर जुपिटर माउंट की तरफ होगा तो आप बैरून मुल्क सफ़र करेंगे। जो लोग स्टूडेंट होते हैं, स्टडी के लिए ट्रैवलिंग करते हैं, तो उनकी जो फिश होगी उसका रुख जो है वो जुपिटर माउंट की तरफ होगा। और जो लोग वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे, सफ़र करेंगे, उसका रुख ये बड़ी उंगली सैटर्न की तरफ होगा। और जो लोग शोबिस से रिलेटेड होते हैं या जिनके अंदर कोई आर्ट होता है, कला होती है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो उस फिश का रुख जो है वो सन माउंट की तरफ होगा। और जो लोग बिजनेस के लिए ट्रैवलिंग करेंगे तो वो मरकरी की तरफ उनका इस फिश का रुख होगा, जो इनके मून माउंट पे होगी। मून माउंट पे जो फिश का साइन है, या आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लें, ये है आपका मून का एरिया। ये मैं आपको समझा रहा हूं, ये आपका मून का एरिया है। अब यहां पे इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ लें, ये फिश है आपकी। इस फिश का रुख जो है वो मुख्तलिफ माउंट्स की तरफ हो सकता है। अगर जुपिटर की तरफ होगा तो आप स्टडी के सिलसिले में बैरून मुल्क सफ़र करेंगे। अगर इस तरफ होगा तो जॉब के लिए वर्क परमिट वीज़ा आपको मिल सकता है। और अगर ये सन माउंट की तरफ होगा, फिश का साइन, इसका रुख इधर होगा, तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा शो बिज में भी अल्लाह ताला आपको बहुत बेतहाशा कामयाबियाँ देता है। और फिर आप जो लोग मुख्तलिफ कंसर्ट करते हैं, सिंगर होते हैं, बैरून मुल्क जाके कोई एक्टर हो गया या सिंगर हो गया या कॉमेडियन जो होते हैं वो बैरून मुल्क जाके जो परफॉर्मेंस करते हैं, कंसर्ट मुनक्कद होते हैं उनके, और वो बेतहाशा दौलत कमाते हैं, तो उनकी फिश का जो रुख होगा मून माउंट पे वो इधर सन माउंट की तरफ होगा। और ये मरकरी होता है आपके बिजनेस को रूल करता है। अगर फिश का रुख इस मरकरी माउंट की तरफ होगा तो फिर आप बिजनेस की वजह से आप ट्रैवल करेंगे। तो चले इसी फिश के हवाले से जिन लोगों को ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, वो स्टूडेंट जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पे ये मून आपको बैरून मुल्क लेके जाता है। ये जो लाइन है, ये इस तरीके से लाइन भी आपको मून पे इस तरीके से नजर आ सकती है। अगर लाइन का रुख जुपिटर की तरफ होगा तो स्टडी के लिए आप बैरून मुल्क जाएंगे। अगर इस लाइन का रुख सैटर्न की तरफ होगा तो जॉब के सिलसिले में आप जाएंगे। तो लाइन हो या फिश का साइन हो, ये आपको ट्रैवल करवाएगा। इसके अलावा मून माउंट पे ये जो फिश है, ये जो इंसान के अंदर मुख्तलिफ तख्लीकी सलाहियतें होती हैं, इंसान का तखय्युल ऐसे लोगों का बड़ा ज़बरदस्त होता है। जैसे शायर लोग होते हैं, देखिए उनके अंदर तखय्युलाती सलाहियतें होती हैं, उस तखय्युल के बेस पे वो शायरी करते हैं। या नावल निगार होते हैं, बहुत बड़े बुक राइटर जो होते हैं, उनके हाथ में अगर ये फिश का साइन होगा तो ये फिश उनको बहुत अच्छा शायर बना सकती है, नावल निगार बना सकती है। इसके अलावा फिल्मों के जो राइटर होते हैं, हदायतकार होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, जो शोबिज़ से रिलेटेड होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जो रिलेटेड होते हैं, उनके हाथ में आमतौर पर फिश जो है उनके मून माउंट पे होगी। और इनकी जो किस्मत की लकीर होगी वो भी मून माउंट से ही ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि इन लोगों का जो फ्यूचर होता है, इन लोगों का जो कैरियर होता है, ये पब्लिक के साथ जुड़ा होता है। ये ऐसा काम करते हैं, अगर पब्लिक पसंद करती है तो इनको अरूज मिलता है, इनको नेम फेम मिलता है। तो इसलिए ये पब्लिक के साथ इनकी कामयाबी जुड़ी होती है। तो ये पब्लिक के साथ जुड़ना, ये मून जो है वो आपको पब्लिक के साथ जोड़ता है। बैरूनी दुनिया जो होती है, जो आउटर दुनिया होती है, उन लोगों के साथ ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा राब्ता होता है। अगर आपकी मून माउंट पे फिश का साइन हो और आपकी किस्मत की जो लकीर है वो भी मून से शुरू हो रही हो। तो अभी और भी काफी जगह है जनाब, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो लाइनें एक दफा फिर ड्रा कर लेते हैं। ये आपकी जिंदगी की लकीर, और ये आपकी ब्रेन लाइन, ये आपकी हार्ट लाइन, ये आपकी किस्मत की लकीर, ये आपकी शोहरत की लकीर, ये आपकी बिजनेस की लकीर। ठीक है जी। अब अगर जिंदगी की लाइन के अंदर की तरफ किसी का यहां पे ऐसे फिश साइन बनते हैं, जो कि जिंदगी की लाइन के अंदर की तरफ हो,
तो ये भी लाइफ को प्रोटेक्शन भी देगा और ये आपको ट्रैवल भी करवाएगा। और ऐसे लोग भी ज़िंदगी में सफ़र भी करते हैं, और कोई हादसा होने वाला हो या कोई बहुत बड़ी टेंशन इनके साथ बनने वाली हो और यहाँ पे ये गार्डियन एंजल लाइन भी मौजूद हो, तो ऐसे लोगों को ये फिश जो होती है वो लाइफ को प्रोटेक्ट भी करती है, आपको मुश्किलात से निकालती भी है और आपकी फॉरेन सेटलमेंट भी करवाती है। तो ये फिश ज़िंदगी की लाइन के बाहर की तरफ भी बन सकती है इस जगह पे भी। ये तब भी आपको फॉरेन ट्रैवल भी करवाएगी और आपको ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी आपको ज़रूर मिलेगा, ये आपको उस तरफ लेके जाएगी। तो बाकी ये है कि ये होता है आपका केटू का एरिया। अगर यहाँ पे आपको इस जगह पे फिश का साइन मिलता है, तो अब ये केटू जो होता है यहाँ से केटू और जुपिटर ये एक जैसा जो है ना इनके अंदर खसूसियात पाई जाती है। जुपिटर भी आपको रूहानियत की तरफ लेके जाता है, आपको ऑकल्ट साइंस, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी की तरफ लेके जाता है। तो अगर आपकी यहाँ पे स्टार्ट में फिश साइन होगी तो आपके पास बेतहाशा दौलत भी आएगी, रुपया पैसा भी आएगा, और मे भी आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाएं, पॉमिस्ट बन जाएं, या जो लोग अमलियात करते हैं, जिनके पास पुरस्रार अनूप होते हैं, जिनके अंदर पुरस्रार कुव्वतें होती हैं, तो उनके हाथ में भी ये केटू माउंट पे फिश का साइन पाया जा सकता है। और ऐसे लोग रूहानियत की तरफ भी माइल होते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाते हैं, और ऐसे लोगों के अंदर अंदरूनी शक्तियाँ, पावर्स, रूहानी पावर ऐसे लोगों के अंदर बड़ी स्ट्रांग होती है। अगर आपके केटू माउंट पे फिश का साइन हो, ये शुरू में तो आपको स्ट्रगल करवाते हैं, जिंदगी के पहले 30-35 साल थोड़ी सी मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आती हैं, लेकिन उसके बाद ये आपको फॉरेन ट्रैवल भी करवाता है, फॉरेन सेटलमेंट भी आपकी होती है, और ज़िंदगी में बेतहाशा आपको अरूज मिलता है। इसके अलावा जी किस्मत की लाइन और ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ये होता है आपका राहु का एरिया। यहाँ पे आपको फिश का साइन मिले इस जगह पे, ये आपका राहु का एरिया है, इस चीज़ को आप समझ लें, ये सारा एरिया आपके राहु का एरिया है। अब इसके बीच में आपको यहाँ पे एक खूबसूरत फिश यहाँ पे बनी मिलती है, ठीक है, और ये फिर ये आपकी किस्मत की लाइन के साथ भी जुड़ी हुई हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये फिश आपको बैरून मुल्क सफ़र भी करवाएगी। जो लोग, जिन लोगों को सट्टा लॉटरी के साथ बड़ी दिलचस्पी होती है, उनकी यहाँ पे किस्मत की लाइन के साथ जुड़ी हुई फिश का साइन हो, या यहाँ पे फिश हो सन माउंट पे और जुपिटर पे फिश का साइन हो, इन 3 जगह पे आपको 100% कोई बड़ी लॉटरी लग सकती है। राहु का काम ही आपको सडन वेल्थ देना होता है। राहु आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के बहुत ज्यादा मौके देता है। आप गैम्बलिंग करते हैं और आप शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करते हैं, और राहु आपको जो भी देता है रातों रात देता है। तो सडन आपको वेल्थ मिलेगी, तो सडन वेल्थ आपको कहां से मिलेगी? गैम्बलिंग से मिल सकती है, जुए से मिल सकती है, बड़ी लॉटरी से मिल सकती है। तो ये रातों रात आपको सुपरस्टार बना देता है, रातों रात आपको कखपति से करोड़पति, अरबपति बना देता है। तो ये राहु के एरिए पे यहाँ पे फिश का साइन हो, यहाँ पे फिश का साइन हो दिमाग की लाइन के साथ जुड़ा हुआ, तो ये भी आपको आपकी जबरदस्त दिमागी सलाहितों की वजह से अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा कामयाबियां देता है, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा अरूज देता है। तो मेरे ख्याल है फ्रेंड्स, हमने तकरीबन सारी जगह पे हमने फिश साइन को आज कवर कर लिए। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपने मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करना है। तो आपकी इंशाल्लाह ताला जन्म कुंडली बनेगी, आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा, और आपके दोनों हाथों की रीडिंग बड़ी डिटेल के साथ की जाएगी। आप बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, आपकी लव मैरिज नहीं हो रही, आप शादी के लिए परेशान हैं, या डाइवोर्स का मसला आपका चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें कुंडली में आ जाती हैं। कुंडली में भी पता चल जाता है और हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल अगर आप बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, आपने कोई किसी एजेंट को केस दिया हुआ है, या आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, या आप बैरून मुल्क में हैं और आपकी पीआर नहीं हो रही, आपकी पीआर कब होगी, कब तक आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी, इन सारे सवालों के जवाब, आपकी शादी कामयाब होगी नहीं होगी, शादी कब तक होने के चांसेस हैं, डाइवोर्स हो जाएगी या डाइवोर्स नहीं होगी, अगर लड़ाई झगड़ा शादी में चल रहा है, तो ये चीज़ें भी हम जन्म कुंडली में ये चीज़ें जान सकते हैं। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी बारीक होती है, लेकिन अगर डीपली गौर किया जाए तो शादी का भी पता चल जाता है कि शादी कामयाब होगी नहीं होगी। इसके अलावा जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं हो पा रही, तो औलाद का भी पता चल जाता है कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा नहीं देगा।
शादी आपकी कामयाब रहेगी नहीं रहेगी, ज़िंदगी में किस कदर आप दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी नहीं होगी, इन सारी बातों का भी, जॉब का भी, आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी, आपकी जो मिड एज है वो कैसी गुजरेगी, आपका बुढ़ापा कैसा गुजरेगा, तो ये हाथ की लकीरों से इन सब चीज़ों का पता चल सकता है। तो बिल्कुल आप जनाब अपना पाम रीड करवाने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। तो आपको आपने अपने यहाँ दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आप सेंड करें। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर हम टाइम ऑफ बर्थ कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे जनाब आपके बहन भाइयों की तरतीब से। देखिए जायचे के अंदर आपके बहन भाइयों की तरतीब भी निकली होती है। एक दिन में जिस दिन इंसान पैदा होता है ना, उस दिन के 12 जायचे बनते हैं। तो उन 12 जायचों में अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है तो आपके बच्चों की तरतीब से भी हम बर्थ टाइम आपका निकाल सकते हैं कि कौन सा आपका बर्थ टाइम हो सकता है और कौन सा आपका जायचा एक्यूरेट हो सकता है। और आपके बहन भाइयों की तरतीब से भी हम आपके जायचे की एक्यूरेसी देख सकते हैं कि वाकई ही आपका बर्थ चार्ट है और आप इसी दिन पैदा हुए थे। तो बिल्कुल आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड करें। अगर टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर बहन भाइयों की तरतीब आपने सेंड करनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, चौथे पे इनके आपका घर में कितना नंबर है और आपसे बड़े कितने हैं और आपसे छोटे कितने हैं। और इसके अलावा आपको अगर अल्लाह ताला ने औलाद दी हुई है तो पहले नंबर पे अल्लाह ताला ने आपको बेटा दिया या बेटी, दूसरे नंबर पे बेटा है या बेटी। इस तरीके से ना बड़े बेटे से लेके सबसे छोटे तक आपने ना बच्चों की तरतीब भी बता देनी है। तो 100% एक्यूरेट आपका जो होगा ना वो टाइम ऑफ बर्थ और आपका जायचा, आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जब आपकी जन्म कुंडली एक्यूरेट बन जाएगी फिर आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब आपको 100% बड़ा एक्यूरेट मिलेगा। तो फ्रेंड्स बाकी चार्जेस हैं जी, ये काम फ्री वाला बिल्कुल कोई नहीं है। जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।